Hello everyone. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CSNSR. I'm Ramsha from CSNSR and today we're going to discuss about the ineligibility of bank branch statutory auditors. And for discussion, today we have with us Mr. C. Vivek Khurana sir. A very warm welcome to you sir. Thank you for joining us today. Now, before beginning with the video, I want to make a special request to please like this video, subscribe to our YouTube channel, and hit the bell icon for the latest updates. Okay. Now, going back to the video, sir, can you please discuss about the ineligibility of bank branch statutory auditors? Thank you very much, Ramsha, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on some other another important topic. So I already promised you that now in the month of March we will discuss on the bank branch audit and we'll try to record maximum videos on the bank branch audit. And even last week I have also received a call on this topic. One of my friend was the concurrent auditor of a bank and he asked me if I surrender the concurrent audit, then after that can I accept the bank branch statutory audit or not. So lots of things are there. उसके ऊपर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता as the ineligibility criteria are there. So we will discuss on that topics also. So let me that point. So let me show you through the PPT. I think the PPT is visible. So regarding the ineligibility of bank branch statutory auditor, तो मैंने जो इसका जो पॉइंट है वो भी यही लिखा है मस्ट चेक बिफोर एक्सेप्टिंग एनी बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर मींस आपको चेक करना है ये फ्यू पॉइंट्स आर देयर तो वेदर यू आर एलिजिबल आर नॉट माइट बी कुछ कई बार इनएलिजिबल हो फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो देन लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर so before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed to be the views of any other authority, any other person, and don't take it any legal opinion, legal advice, and professional opinion or the professional advice. And the purpose of this video, just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please also check with the RBI regulation, जो Banking Regulation Act है, Companies Act है, ICI Guidance Note है. Please confirm once again. I have tried my best. So as the auditor, if I am going to become the बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिटर तो फर्स्ट थिंग जो कुछ वैसे आपको चेक भी करनी है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है कि कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंट्रोल है देन कंपनीज एक्ट में जो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेक्शन 144 भी है कि व्हाट फ्यू थिंग्स एज ए ऑडिटर यू कांट डू देन आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे देन आरबीआई गाइडलाइंस तो आईसीआई ने भी जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है दैट हैव आल्सो इशूड FAQs on the professional ethics of member pertaining to bank assignments. तो उसमें mention है whether sorry where in the auditor cannot accept the position as bank branch statutory auditor in the following conditions. कौन कौन सी circumstances है? First thing कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है बैंक से चाहे किसी ब्रांच से बैंक की या मतलब अगर आपने कोई एक ब्रांच से ऑडिट लोन ले रखा है या बैंक से ऑनलाइन लोन ले रखा है तो इन दैट केस वेदर यू शुड एक्सेप्ट एज द स्टैट्यूटरी बैंक ब्रांच ऑडिटर और नॉट तो इसमें व्हाट आईसीआई सजेस्टेड टू ऑल ऑफ यू एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने कि द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन नॉट एक्सेप्ट branch audit of the bank if one of the partners have taken the loan from any branch of that bank कि अगर किसी भी पार्टनर ने अगर लोन ले रखा है बैंक से देन इन दैट केस फर्म शुड नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट एज बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट क्लियर ऐसा नहीं है कि आपको उसी ब्रांच का से आपका यू कांट डू द ऑडिट ऑफ दैट ब्रांच नो यू कांट डू द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द होल बैंक इटसेल्फ किसी भी ब्रांच का ऑडिट नहीं कर सकते एंड इन द नेक्स्ट केस कि अगर आपने एफडी अगर किसी ब्रांच में आपके बैंक के अंदर आपकी फिक्स डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट आपने लोन ले रखा है इन दैट केस आल्सो कि अगर एक लिमिट जो 1 लाख रुपीज प्रिस्क्राइब किया है उससे ज्यादा अगर आपकी लिमिट से ज्यादा अगर आपने लोन ले रखा है इन दैट केस आल्सो यू शुड नॉट एक्सेप्ट द बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर
क्लियर कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है, either it's a loan from the bank or the loans against the FD, then in that case also you should not accept the audit of the assignment of the bank itself. ब्रांच की बात नहीं हो रही, पूरे बैंक का ऑडिट असाइनमेंट आपने ये सेट करना. देन इन केस, अगर इफ यू आर द रेवेन्यू ऑडिटर, अगर कोई रेवेन्यू ऑडिटर है किसी बैंक का, इन दैट केस किसी चाहे किसी ब्रांच का भी है, इन दैट केस whether that auditor should accept the audit assignment of that bank? No. आईसीआई सेट कि नहीं, एज ए रेवेन्यू ऑडिटर, आप किसी भी ब्रांच के रेवेन्यू ऑडिटर हो तो आप पूरे बैंक की किसी भी ब्रांच का, इट्स नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दैट बैंक इटसेल्फ. एंड इन नेक्स्ट केस कंकरेंट ऑडिटर, जो मैंने बताया कि आई हैव रिसीव्ड ए कॉल रिगार्डिंग द कंकरेंट ऑडिटर. इफ यू आर द कंकरेंट ऑडिटर, दैट यू पीपल आर अवेयर कि एज ए कंकरेंट ऑडिटर आप अगर किसी ब्रांच के, एक ब्रांच की या एक से ज्यादा ब्रांचेस के ऑडिटर है तो इन द सेम बैंक, तो आप किसी भी ब्रांच का आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कर भी नहीं सकते एज ए, बिकॉज कंकरेंट ऑडिट इज ए मैनेजमेंट सर्विसेज. आपको रूटीन काम करना है, डे टू डे एक्टिविटीज चेक करनी है. तो अगर किसी भी एक ब्रांच का कंकरेंट ऑडिट कर रहे हैं तो आप कंप्लीट बैंक की किसी भी ब्रांच का स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड इन दैट नेक्स्ट केस, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जो क्वेश्चन था, वेदर द कंकरेंट ऑडिटर ऑफ ए बैंक कैन एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिट आफ्टर relinquish the assignment of concurrent audit of the bank. कि मीन्स अगर मैं कंकरेंट ऑडिटर हूं और मैंने सरेंडर कर दिया कंकरेंट ऑडिट कि ठीक है मैंने नहीं करना आपका कंकरेंट ऑडिट, मीन्स relinquish कर दिया, एंड इन दैट केस वेदर आई कैन एक्सेप्ट द बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट आर नॉट. तो आईसीआई सेड जो आपका कंकरेंट ऑडिटर है, अगर आपने सरेंडर कर दिया कोई असाइनमेंट एज ए कंकरेंट ऑडिटर, इन दैट केस you can accept, you may accept the statutory provided, यहाँ पे provided mention कर दिया, where the concurrent audit assignment for the relevant year has already been commenced at the time of acceptance of statutory audit, the statutory audit for the said year should not be accepted. कि अगर आपने एक्सेप्ट करके वो स्टार्ट कर दिया, उसको कमेंस कर दिया कंकरेंट ऑडिट को, उसके बाद अगर आप उसको सरेंडर करते हो, इन दैट केस यू शुड नॉट एक्सेप्ट द बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी. तो क्लियर. तो माय फ्रेंड, अगर आप सुन रहे हो वीडियो को तो आई थिंक योर क्वेरी हैज बीन रिजॉल्व. और जो ये कहा मेंशन है, ये एफएक्यू बाय द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, वहां पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने करंट ऑडिट असाइनमेंट ऑफ द रेलेवेंट ईयर अगर आपने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैच्यू ऑडिट, कि अगर जिस डेट को आप स्टैच्यू ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो उससे पहले अगर आपने स्टार्ट कर दिया है और अगर उसके बाद भी या उस टाइम पे अगर आप सरेंडर करते हो, इन दैट केस आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आप कर भी नहीं सकते. क्लियर. देन इन केस ऑफ कंकरेंट ऑडिट का जो ये है कि अगर लफार, कई बार क्या होता है कि बैंक ब्रांच में एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर यू हैव टू डू द बैंक ऑडिट रिपोर्ट, लफार, सम अदर सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा. बट इन केस सम ब्रांचेस आर, जो कुछ ब्रांचेस हैं आपकी वो ऑडिट नहीं हो रही, तो उस केस में बैंक आस्क द कंकरेंट ऑडिटर, तो वो उनको लफार का असाइनमेंट दे देते हैं. तो वेदर दैट कंकरेंट ऑडिटर कैन एक्सेप्ट लफार असाइनमेंट, तो आंसर इज यस, दे कैन एक्सेप्ट, वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है. एज ए कंकरेंट ऑडिटर यू कैन एक्सेप्ट द लफार, जो आपके लफार असाइनमेंट है, जिस बैंक का स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट नहीं हो रहा, उस केस में लफार एज ए कंकरेंट ऑडिटर दे कैन डू. Then stock auditor. If I am a stock auditor of a branch of a bank, so whether I can accept the assignment of bank branch statutory auditor? Answer is no. You cannot accept stock auditor or statutory auditor. Both things it's not permissible. तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टॉक ऑडिट है, हाँ, इसके साथ साथ इंस्पेक्शन ऑडिट भी है. चाहे स्टॉक ऑडिट हो, इंस्पेक्शन ऑडिट हो, यू कांट डू इट टुगेदर विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट, बिकॉज जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है इट्स आपका इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है. आपकी जो मैनेजमेंट फंक्शन है दैट्स द स्टॉक ऑडिट और द इंस्पेक्शन ऑडिट. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अगर स्टॉक ऑडिट कर रहे हो देन यू आल्सो एक्सेप्ट द पोजीशन एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. देन इन नेक्स्ट केस क्रेडिट कार्ड. अब वैसे भी आईसीआई का टाई अप है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ शायद, आई थिंक, तो उनके साथ दे आर प्रोवाइडिंग द मेंबर्स क्रेडिट कार्ड. तो अगर क्रेडिट कार्ड है तो कैन आई एक्सेप्ट द बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर? So yes, if you have the credit card, then you can accept as the bank branch statutory auditor. But yes,
अगर आपकी लिमिट अभी तो 1 लाख है या कुछ अगर उन्होंने चेंज कर लिया तो दैट यू पीपल कैन चेक। अगर जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अगर 1 लाख से ज्यादा है देन इन दैट केस यू शुड नॉट एक्सेप्ट द पोजीशन एज द बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी। बट यस, अगर आप उसको क्लियर कर देते हो एक्सेप्टेंस से पहले देन ऑब्वियसली यू कैन एक्सेप्ट द पोजीशन। सेम थिंग वाज द लोन कि अगर आपका कोई पार्टनर है अगर वो लोन सारा का सारा लोन क्लियर करा देते हैं तो इन दैट केस दैट कैन दे कैन एक्सेप्ट द पोजीशन। यस। सो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इवन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है अगर मैं किसी ब्रांच का या किसी बैंक का बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो उस केस में भी दे शुड नॉट एक्सेप्ट एनी अदर असाइनमेंट। कौन कौन से? इंटरनल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ बैंक का तो इन दैट केस आई शुड एक्सेप्ट द other assignment, internal audit, management audit, and the management consultant services within 1 year from the completion of audit assignment. So I think जो हमारा डिस्कशन था जो आपकी क्वेरीज थी आई थिंक नाउ इट्स रिसॉल्व कि और जो मेरे फ्रेंड ने भी पूछा था कि वेदर आई कैन एक्सेप्ट इट और नॉट, तो दिस इज द आंसर। तो इसके अलावा कोई और अगर आपकी क्वेरी है दैट यू कैन डिस्कस। ये समझा। Mm, Thank you for this valuable information you have provided to us, sir. We highly appreciate your efforts and hope to see you soon. Yes, and even I am also receiving some messages and Hmm. phone calls regarding the webinar on the bank branch audit. So definitely we will do, but might be in the first week or the second week of the March itself. Yeah. So इसके अलावा भी if you have any other query, you can mail me or message me or you can type in the message box. We'll try to reply it as early as possible. And my sincere thanks to once again to Team CSNR for giving me opportunity. Thank you very much. Bye bye. Take care. Thank you.